telling me we will walk into POK tomorrow and Pakistan will give up Why POK? tomorrow? Is that what We you're are a suggesting? civilizational state. So explain No, about it. that's where I differ. One second, let's take this one at a time. Who Kashmir is doing it? Wakas Sindoor उजाड़ देगा. No, 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 Rajdeep, no. Kashmir is doing it. Wakas Sindoor उजाड़ देगा. No, 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 Rajdeep. और हम इस बात पर पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में कोई रुचि नहीं है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि युद्ध में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। ऊपर दिमाग काम करता है और ना नीचे औजार काम करता है, ये तीनों बुड्ढों का। पाकिस्तान को पत्थर के जमाने में धकेलने वाला 55 इंच छाती वाला मोदी कहाँ मर गया। अब हम कश्मीर कभी भी हासिल नहीं कर सकते। भारत के टॉप के दिफाई तज्जियाकार राजदीप सरदेसाई ने भारतीय न्यूज चैनल पर बैठकर कहा है कि भारत पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर हासिल करने का ख्वाब छोड़ दे। भारत LOC का इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करे और अपने मुल्क पर तवज्जो दे। We've tried to do dialogue with them in the past. Lahore Bus Yatra with Nawaz Sharif, it didn't work. We attempted it even during Manmohan Singh's time. It didn't work. But we need a permanent solution. No, so the permanent solution is not going to come unless we discuss the real issues. We need to discuss terror with Pakistan, and at some stage we will have to address our own issues within Jammu and Kashmir. No, And, you know, only at some issue stage that we is will have to address that. Pakistan occupied Kashmir. Not only taking back Pakistan occupied Kashmir. There is no how are we question. going to take back Pakistan occupied Kashmir? We have two options. Either we agree on the present LOC as an international border, No, which, why? which was put on the table, which I think is a potential solution. Are you telling me we will walk into POK tomorrow and Pakistan will give up Why POK? tomorrow? Is that what We you're are a suggesting? civilizational state. So explain No, about it. that's where I differ. State. That's where I differ. Yes, it These will- are all very nice terms, civilization state. Let us not underestimate also Pakistan's capacity to strike back as a nuclear power. I am saying, No, can but we Rajdeep, look, haven't are we we seen looking that? for permanent solutions, or is the Prime Minister, as he was today, first satisfying the domestic constituency? कि देखो हमने मुंह Okay, तोड़ के let's take वापस this one at a time. One second, let's take this one at a time. How Gaurav. Kashmir is doing it? Wakas Yes, Sindoor उजाड़ देगा. No, 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 no. Rajdeep, Hello. Gaurav, just hold on. One at a time. Wakas Sindoor उजाड़ देगा और आप बोलोगे डायलॉग करें. डायलॉग करें. Is that what we want? multi-pronged approach. तो multi-pronged approach है. इससे ज्यादा क्या let's take multi-pronged this. approach चाहिए? Indus Waters Treaty has been held in abeyance. In IWT is in abeyance. You're not having any dialogue with Pakistan on anything except POJK. You know, and now you're putting pressure that they should get no money. You're telling Turkey and China to wake up. Whether they do or not, we don't know. हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है और हम इस बात पर पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में कोई रुचि नहीं है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि युद्ध में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अकेले ही काम करना पसंद करेंगे ताकि हमारे लोग उस दुनिया में आ सकें जिसके लिए वे 21वीं सदी में तैयार हो रहे हैं। हमारे पास नहीं है। सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है और आपके इस गलत कदम से हमारे देश की सेनाओं को नुकसान हुआ है। तो आप ये क्यों नहीं चाहते? अभी मत पूछो, तभी मत पूछो। जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है, क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कि सवाल मत पूछो। हम छुई मुई हैं। आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है ये? कहीं सिंदूर बहा रहे हैं, कहीं कुछ करें। और जानते हैं, एक और चीज बताना चाहती हूँ, मानक जी ध्यान से सुनिएगा। कल से हेडलाइन बदलने के लिए, क्योंकि ये सिंदूर वाला जो पटाखा था ये फुस हो गया प्रधानमंत्री का, तो इसलिए वो लोग एक घटिया से बंदे का वो कर रहे हैं, बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, हाईवे पर दिखा रहे हैं। हेडलाइन बदलने की कितनी कोशिश कर लो, इस देश से ये सवाल पूछे बगैर आप नहीं जा सकते, आप छूट नहीं सकते कि आपने सीजफायर की। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है। अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहां नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन। आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछेंगे राहुल गांधी? कल को राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है, आज चाइना सेलिब्रेट कर रहा है कि उनके जेट एंड विमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान में और वो कर दिया। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपके इस चैनल पे आनंद जी थे नहीं जब आप उस दिन सीज फायर से अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे कि क्यों फेल्योर हुआ ये। तो एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे काउंटर किया, लेकिन मैंने वहां उनको कहना उचित नहीं समझा। मैं तुम्हें मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बात आज सही हो रही है या नहीं? आज सारी दुनिया बात कर रही है या नहीं कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी क्षमता है, वो विशेषज्ञ बता रहे हैं टूट चुकी होंगी। आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, लचार अर्थव्यवस्था, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही थी आनंद वर्धन जी, चाइना से हो रही थी असल में तो। और अभी किस किस से दबेंगे आप? ट्रंप से दब रहे हैं, आप चाइना से दब रहे हैं भाई। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, विश्व गुरु आप है, 56 इंच आप है। तो कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। भाषण कम करिए, काम करिए जमीन पे।
और बताइए देश को, और शर्म क्या है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध में तो कॉम्बैट में तो नुकसान होता ही है, तो आपको शर्म क्या है? शर्म ये है क्योंकि राफेल को लेके जो बातें हुई थी वो सच सिद्ध होने वाली है। वो चौकीदार चोर का नारा जो है ना वो सच सिद्ध होने वाला है, इसलिए बचते फिर रहे हैं, मुंह छिपाते फिर रहे हैं राफेल से कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। बात तो 7 राफेल की है, लेकिन हम नहीं मानते, वो तो बड़ा चढ़ा के दावे किए जाते हैं, लेकिन बताया तो जाए देश की जनता को। अब आप देश की जनता को, आपका मीडिया जब बता रहा है कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया और आपने कराची पोर्ट कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, पब्लिक सोच रही है कि बस आप पीओके आया, आपने जो पीओके का सवाल उठाया, तो ये पीओके के वापस लाने की जो उम्मीदें बंधाई, ये मोदी सरकार ने ही तो बंधाई। रोज व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आज से नहीं 10 साल से। बस योगी जी कह रहे थे अभी 2024 के इलेक्शन में कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, आपको पीओके लाके देंगे मोदी जी इस बार वापस। तो पब्लिक ने सोचा कि जब इस्लामाबाद और कराची कैप्चर हो गया है तो पीओके तो पहुंच ही चुके होंगे, बता नहीं रहे हैं अभी, और अगले दिन सुन रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो पब्लिक धड़ाम से गिरी है, इन्हीं के समर्थक गिरे हैं, इन्हीं के समर्थकों को बहुत बड़ा शॉक लगा है जी। बड़ा खतरा पैदा हो गया है आनंद वर्धन जी। चाइना ने पूरा टेस्ट कर लिया है अपना, यहाँ की आर्मी की, यहाँ की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी, क्योंकि आगे के युद्ध एयरफोर्स से लड़े जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहिए आप, खतरा टला नहीं है अभी। आप सोच रहे होंगे कि खाली मैं सिंदूर लहू में सिंदूर भा के और उससे खतरा टाल दूंगा। एक्चुअल खतरा अभी सीमाओं के ऊपर दोबारा से तैयार हो गया है। जो चीन के मंसूबे हैं वो पूरा करेगा चीन जरूर, क्योंकि उसके चीन इस टाइम बॉस बना हुआ है पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। लेकिन हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक बड़ा फेलियर हुआ है। आप इजराइल और अमेरिका की कॉलोनी बन चुके हैं। जो ट्रंप कहता है आप करते हैं। कहां गया फ्री बलूचिस्तान, कहां गया दूसरा सिंध, कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े, कहां गया पीओके? वेयर इज ऑल दैट रेटरिक? कप ऑफ टी है, भारत क्या कहेगा, चाय में दूध डालना है, आइए पीओके डाल देते हैं। बलूचिस्तान चाहिए, ओके, चाय में शक्कर डालनी है, आइए ये डाल देते हैं। अच्छा फिर हमें बिस्किट भी चाहिए तो लाहौर भी ले लेते हैं। हमने नहीं चलती है, हम कर रहे हैं। आप अमेरिकन, आप फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि व्हाट ट्रम्प सेड वाज नॉट करेक्ट एंड दे विल नॉट से इट। दे आर सेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वी ब्रोकन द पीस। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पाकिस्तान को बनाया, दीप्ति काला नो ऐसे नहीं, ये नो रिस्पाइट ऑन दिस, नो रिस्पाइट ऑन दिस। ही इज सिंपली सेइंग पूरी रात बातचीत की उन्होंने मैं दूंगा ट्वीट अभी सर सीज फायर सब यूज करा है। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नारे लगाते हैं अखंड भारत के? क्यों नारे लगाते हैं फिर ये बीजेपी वाले अखंड भारत के? आतंकवादियों को पकड़ो और डोंट डिक्लेयर। 10 साल के अंदर पीओके भी चाहिए, अब बलूचिस्तान भी चाहिए, मतलब यही डिमांड है आपकी। हमें अगर मेरी बात सुनिए, मैं एज अ कम्युनिस्ट चाहता हूं पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते, मैं वॉर नहीं चाहता, मैं सीज़फायर को वेलकम करता हूं, लेकिन हम वो शांति की बात पाकिस्तान के साथ करें क्योंकि दोनों तरफ गरीब आवाम मरती है, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। लेकिन आपने अपने सारे डिसीजंस फॉरेन पावर्स के कहने पे करे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो विवेक आप क्यों हंस रहे थे? संजय जी जब बोल रहे थे। अरे सर उन्होंने इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ये आपने सर उन्होंने, आप ये बताइए अगर कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा है तो आप उसको पैसे भी देंगे, और जो गिड़गिड़ा रहा था वो सीज फायर का उल्लंघन भी करेगा और उसके बाद रात को आप पे फायरिंग भी करेगा। ये कोई लॉजिक बनती है? पाकिस्तान सर अगर पाकिस्तान सीज फायर के लिए बेग कर रहा था और मैं आपकी बात को मान लूं और सीज फायर आपकी वजह से सीज फायर का आपकी बात को नहीं, ये सेना की बात है, क्योंकि सर ये सीज फायर अमेरिका ने करवाया है। इट इज एन अमेरिकन पॉलिसी and we were under American pressure and I can read Donald Trump's tweet। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਏ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। दरबार जैसे मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री से कमजोर नहीं है, उसका मैंने एविडेंस दिया। मिलिट्री लाइन बनी हुई है आगे, और आप देखिएगा चाइना जो है, चाइना ने खुलेआम कहा है तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर